Avoid fear of failure with Plan B. By making the statement, I am not promoting going abroad and neither I am saying not to try for NEET UG. But look at this. NEET UG 2024 registrations surpassed 25 lakh mark. Thinking about studying MBBS in Russia, wondering if Kazan State Medical University is right choice for you after NEET UG? Well, you are at right place. In this video, we are breaking down everything you need to know regarding Kazan State Medical University. हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. Personally, for me, first year especially first semester was a shock because when I went there, in the schedule, there was nothing related to medical education or anything. It was physics, chemistry, biology and Russian. I would just say third year में सबसे ज्यादा ऐसी feeling आती है कि आप MBBS कर रहे हो और आप डॉक्टर बन रहे हो. सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था रशिया जाके के मेन तो ये है भाई लैंग्वेज बैरियर. आप उस टाइम पे अब्बा डब्बा जब्बा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, कुछ पता नहीं है भाई. आप जस्ट एक एकेडमिक तो वो ठीक है कि आप 6 ईयर वहां से एमबीबीएस की डिग्री करके आ रहे हो भाई, उसके साथ साथ में तुम एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहे हो. वो ठीक है सबके ऊपर में खाना कौन कैसा बनाता है. कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मुझे हॉस्टल मिलेगा, वो 6 ईयर तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ. That's the point. और अभी फ्लैट्स का फॉर रशिया स्पेशली फॉर कजान ये सीन है कि मतलब वहाँ पे लाइक रेंट इज फॉर 40 to 50,000 पर मंथ. अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा तो कजान में मत आइए. When you're studying in Russia, you get to know, firstly they teach a lot about different like US guidelines you read, then you go for Europe, and then because you have to come back to India, you have to have a knowledge about India as well. So that itself gives you a very good medicine knowledge. सर वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द डिसीजेस लाइक सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल लाइक We had our classes in hospitals itself, so we saw patients here and there, so it was like our internship only. So at Russia, like our hospital number 7 was there, Kazan में. वहाँ ऑर्थो के operations होते हैं बड़े बड़े. I was me and my friend Vishwas, my roommate. We were like पूरे दिन में 4 से 5 सर्जरी हमने असिस्ट कर दी. Like it was like पहले कभी ऐसा हुआ नहीं. कजान का बहुत प्लस पॉइंट फैक्टर था, बस 15 लोगों का ग्रुप रहता है और उनको पढ़ाते हैं, मतलब वो टीचर सब पे फोकस कर सकते हैं. हेल्प ये हुई थी यूनिवर्सिटी से कि हर साल 10% स्कॉलरशिप 15% स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को. So मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बेसिक है, FMG एग्जाम कैसा था? नवंबर दिसंबर पहुंचते तब तो ऐसा होता है भगवान जो आप एम करते हो ना कि 180 190 लाने हैं, तब होता है प्रभु बस 150 लाना उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बस पास करवा दे भगवान. Apart from this, I have started my own company that is for abroad educations where we do admissions in MBBS courses at Russia. And this is our website where you can apply. This admission registration for 2025 and 2026 session already started. Good evening everyone, my name is Dr. Chinmanan and you are watching my channel Earthly Existence, and today I am with all of the Kazan State juniors and my colleagues, those who have passed their FMG exam in very first attempt. This is kind of information meet for all who gonna take admission at Kazan State Medical University or at any university in Russia. Please introduce yourself one by one. Hello everyone, my name is Ravina. Hello everyone, my name is Om Dhole. myself Dr. Vedant Avinash Nanote. Guys, I am Dr. Abhilasha. हेलो माई सेल्फ डॉक्टर सक्षम चौधरी. myself डॉक्टर आनंद कुमार गुलर. Hello everyone, myself Ankit. Hello, myself Dr. Ahmed Faraz. So welcome all of you and let's start the formal questionnaire, okay? So can you walk us through a typical day in your life as a medical student at KSMU you had during your first year? Apart from that, how you balance your responsibilities as well as extracurricular, and what were your most challenging subjects or topics you have encountered during your studies at KSMU? Okay, starting with the day, a typical day for a first year people. So it starts with you waking up, of course, and then you take 3 classes at least, 3 subject classes. You have to travel to different buildings, because no classes are in the same campus. You have to travel. So that's a rule in Russia. You go for classes to your ANAT building, then you have pharma, you have whatever. So you go there and of course you have to pack your breakfast or you have to end up eating outside. And you travel by a bus, so you have to get up early and take the bus. So that's a typical day. When you come back, you have like some time for studying and then some time for cooking. So that's a typical day. Sir, as morning schedule same activity, but during first to third year we used to have the lecture in early in morning from 8 to 10, and after that we used to have one class in like in dean building
another one in first and second year. In another one, it will be in ANET. Anna. Yeah. And there is also physiology department, so we used to have lecture also there. And after that, we used to finish our day like 7, evening 7. And after that, same we used to take the bus and घर पे जाके वही 4 दोस्त एक प्याज काटेगा, कोई टमाटर काटेगा, बीच में झगड़ा हो जाएगा, फिर खाना बन जाएगा. And then the time we used to left, we used to study. Personally, for me, first year was especially first semester was a shock, because when I went there in the schedule, there was nothing related to medical education or anything. It was physics, chemistry, biology, and Russian. And for a second, I was like, did I make the wrong decision? Because they are not teaching me medicine. Is this going to be like this? Generally, I was very shocked and stressed. But yeah, from second semester, it changed. And moreover, about schedule, one thing is there that your schedule changes every day, because your schedule is different every day. It's not like you will be getting classes of the same type, because one day you will be having another class, second day the schedule completely changes. And so does the location, as they already mentioned. So yeah, I would say these two things are only different. Rest so they told already. Yeah, this was regarding first year. So guys, Faraz, I want to ask about second year, third year. You can add. Second year mainly subject was anat and teacher was Ilnaz. मतलब Ilnaz sir is the boss. मतलब anatomy उनसे pass करना is like a dream type चीज. थोड़े से टफ है नो डाउट, बट ही इज गुड ऑल्सो एट द सेम टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हम मेरे को तीनों सेमेस्टर में वही लगे थे, तो सेकेंड ईयर में वाज गुड. He was like helping also sometime कि हाँ ठीक है you can go home if you don't want. तो और फिर सबसे वर्स्ट था बायोकेमिस्ट्री, जो आज तक है, जो मुझे नहीं लगता जल्दी किसी को समझ आती है चल क्या रहा है उसमें. तो वहाँ पे भी ऐसे ही था. बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स लिखने होते थे, टेस्ट में एमसीक्यू याद करके चले जाओ, पास हो जाते हो आप. और ओवरऑल फिर कोविड आ गया तो एक हेल्प हो गई कि लेक्चर्स सारे ऑनलाइन हो गए, क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई, तो एक अच्छा पार्ट था. बट हाँ, उसमें एक खराब चीज ये हुई कि कुछ फ्रेंड्स इंडिया चले गए थे और कुछ वहां पे रुके, तो ग्रुप चेंज हो गया, तो थोड़े से इश्यूज हुए थे. बट ओवरऑल सेकंड ईयर वाज लाइक ठीक ठाक. Okay. Now coming to the third year, the worst year of our life. I would just say थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि आप एमबीबीएस कर रहे हो ना, आप डॉक्टर बन रहे हो. मतलब मेरा तो वही एक्सपीरियंस था. इन ऑल द 6 years, थर्ड ईयर वाज द बेस्ट फॉर मी. मतलब मैंने इतना एंजॉय किया ही नहीं, बिकॉज बोलते हैं ना, आप जितना स्ट्रेस लेते हो, जितना ज्यादा आप तपते हो, उतना ही अच्छा बनते हो. तो वो थर्ड ईयर का वही था. आप एकदम एग्जाम दे के आओ और फिर जो पार्टी करते हो, तो वो अलग ही मजा होता है, क्योंकि आपकी इतनी बैंड बजी होती है इतने दिनों में, एंड देन यू एंजॉय लाइक एनीथिंग. तो मेरे लिए तो थर्ड ईयर वाज द बेस्ट ईयर. एक सेटिस्फैक्शन मिलता है एट द एंड ऑफ द डे. थर्ड ईयर इज बेसिकली वेरी हेक्टिक. थर्ड ईयर इज हेक्टिक. वी हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड क्लिनिकल part is like almost starting there, so you guys are everyone who faces it is like a little bit scared and time management नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत problem start होता है third year में. But then this is like a hurdle, so you can just get over it and start fourth, fifth, sixth year with like a bright smile. Sir, I want to add that every year we have 1 or 2 subjects which are difficult. The teachers are strict, so I think that is a positive point, because third year में हमें microbiology था और एक आईडी था. इसके लिए हमें आयदा मैम थी, एंड आवर सीनियर्स यूज्ड टू से दैट एक बार अगर तुमने थर्ड ईयर पास आउट कर लिया तो तुम्हें 50-60% डिग्री तुम्हें मिल गई है. मैं ये कहना था कि कजान में एक चेक पॉइंट होता है. जैसे आप जाते हो ना, तो आपको सीनियर्स बताते हैं अगर तूने अनाट निकाल लिया, माइक्रो निकाल लिया, तो तेरा ये हो गया. तूने थेरेपी क्लियर कर ली तो ऐसा हो गया. मतलब आपको हमेशा एक चेक पॉइंट मिलता रहता है कि ये बस हर्डल क्रॉस करना है, फिर आप बहुत नजदीक हो अपनी डिग्री के. तो वो हमेशा मिलता रहा टाइम टू टाइम. Basically I will want to summarize it like that, like this is, वो होता है ना, पापा बोलते हैं कि 10th क्लियर कर लो सब ठीक होगा. Exactly. सर थर्ड हॉस्टल में जब आपके साथ था तो आपसे पूछा था मैंने कि थर्ड ईयर में कैसे पढ़ना है सर, तो आपने बोला था थर्ड ईयर क्लियर कर लो तो फोर्थ, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि थेरेपी होता है फोर्थ ईयर से. तो थर्ड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स है, माइक्रोबायो, पैथोनेट, पैथ फिजियो, ये अच्छे से बेसिक्स बनाते हैं ये फोर्थ ईयर सिक्स्थ ईयर के लिए. थर्ड ईयर का मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन तुम्हारे जो एग्जाम हुए सब कुछ ऑनलाइन था, इजी था. कोई इजी नहीं था वैसे, क्योंकि सब्जेक्ट्स आप देखो, पैथ एनाट, पैथ फिजियो, हाइजीन चल रहा है भाई. हाइजीन में एचओडी मैम थी हमें. तो मैं यही बोलूंगा कि एक तो टाइम जोन का डिफरेंस है भाई.
2.5 आवर का। जी जी तो आपकी जी क्लासेस अगर 11 बजे से भी शुरू हो रही है तो रात आप 8 या 10 बजे तक लगे हुए, घर वाले भी बोल रहे हैं भाई खाना खा ले, हम बोल रहे हैं यार कैसे खा ले मैम, एक के बाद एक चल रहा है। एक तो सैटरडे का नाम तो मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर था थर्ड ईयर का, वो सैटरडे को मतलब ऐसे बोलता था कि सैटरडे नहीं है, वो मौत का खेल है। क्योंकि सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा है, पारमैक चल रही है, जस्ट आधा घंटे का गैप आ रहा है, हाइजीन शुरू हो गया। तो हाइजीन में मैम थी, वो तो अच्छा ही था कि पीपीटी बनानी है, ये करना है, और XYZ जो भी चीजें थी, एक भी चीज आप कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि मैम को तो ऐसा था कि वो खाल की बाल निकालती थी भाई। वो खत्म हुई सीधा तो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो गया, उसमें भी अल्फिया मैम। तो आप समझ ही सकते हो मतलब जी फर्स्ट सेमेस्टर में बोलूंगा कि थोड़ा हेक्टिक था, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में जब थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें थोड़ा सा चिल था, क्योंकि हाइजीन आप पूरा कर चुके होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी आपका हो जाता है। तो दो बड़े सब्जेक्ट ऐसा मेन वो हो सकते हैं। बाकी ये है कि थर्ड ईयर में इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि वो आपका बेस है, अगर वहां अच्छे से आप करोगे तो ऑब्वियसली 4 से 6 ईयर कंपेरेटिव इजी हो जाएंगे। वरना थोड़ा सा ऐसा है कि चीजें आप कवर कर लोगे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बोर्ड था, मैं मानता हूँ उस चीज में कि जो ऑफलाइन में आप एक्सपोजर जो आपकी जितने बेटर हो सकते हैं उतने ऑनलाइन में नहीं होंगे, ये चीज ट्रू है। जी बट ये है कि अगर आपने तब नहीं किया तो ऐसा है कि 4 5 6 ईयर आप थेरेपी मेडिसिन आप पढ़ ही रहे हो, 3 साल आप लगातार ही पढ़ोगे। तो वो टॉपिक्स ऐसे है कि अगर जैसे आपने अभी कार्डियो पढ़ा तो लेवल टफ तो होता ही जा रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगी। जी टीचर आपसे यही पूछेंगे कि भाई अगर MI भी है तो MI क्यों सोच रहे हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं है, तो डिफरेंशियल एक बेटर वे में जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि बेस अगर आपका अच्छा है थर्ड ईयर में तो बहुत बेटर है कि आप एक स्मूथ जाओगे, पूरी आपकी जर्नी जो अच्छी रहेगी। I will say, sir, ki all the exams you should prepare properly of all 4 6 years, sir. Whether it be surgery, therapy, medicine, obs gynae, or any another subject. There are some minor subject that the classes are only for like 1 week. Like we used to have the cycle pattern there. So जी just don't go that the sir is not strict or the ma'am is not strict, but you have to study it. And I will again emphasize on that study for you should study the exams properly there. So like many of the topics are done there. So guys, we will move on to the next topic, that is campus life and community. Just share your experiences where you lived. Someone must have lived at flat, someone at hostel. Like I was at hostel. A few of them were at flat. That you can share. Apart from that, how were your professors with you outside the college, like university, and what any organizations we had there, or how we celebrated our festivals? You can add. सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था रशिया जाके, मेन तो ये है भाई लैंग्वेज बैरियर। आप उस टाइम पे अब्बा डब्बा जब्बा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, कुछ पता नहीं है भाई। उसके बाद में ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट से 2 3 महीने तो काम चलाया कि क्या है, उसको दिखाते थे कि भाई ये देख लो। कुछ लोग तो देखना भी नहीं चाहते थे। बट ये है कि रशिया में स्पेशली मैंने ऐसा कजान में देखा है कि या तो लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, या उनको आती है तो वो बोलना चाहते नहीं है। जो भी है उनका कि हर किसी का एक नेशनल लैंग्वेज का होता है भाई, हमें हिंदी पे प्राउड है, उन लोगों को जी रशियन पे होगा, मैं समझ सकता हूँ। दूसरा ये है कि एक कन्नड़ा। खाने की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि आप जाओगे, आपको स्पाइसी पसंद है भाई, वो चाट छोले भटूरे खाने हैं, वो वहां मिलने से रहे। क्योंकि सबसे पहले मेरे भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बोला था आलू का पराठा खिलाऊंगा। मैं जस्ट कैंटीन में गया, मैंने आलू का पराठा देखा तो उसको देखते मैंने बोला आलू का पराठा है, क्या है भाई। हम तो जस्ट ये थे कि खाना बनाना किसी को आता था नहीं। तो मैं ये भी बोलूंगा एक चीज ऐड करके कि आप जस्ट एक एकेडमिक तो वो ठीक है कि आप 6 ईयर वहां से MBBS की डिग्री करके आ रहे हो भाई, उसके साथ साथ में तुम एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहे हो, वो ठीक है सबके ऊपर में कि खाना कौन कैसा बनाता है। बट ये है कि इंडिया में रहते तो हम लोग करते नहीं, क्योंकि मम्मी वगैरह है उसके लिए, तो यहाँ तो जी करने से रहे। तो वो था कि वहां बेटर था कि हम ये एक चीज ऐड किया। दूसरा ये था कि कल्चर में ऐसा है कि डिफरेंट कल्चर तो है, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हम लोग अपने एक मतलब जैसे दिवाली वगैरह हो गया, होली वगैरह हो गया, पहले ऐसा कुछ था नहीं। मतलब स्टार्टिंग के एक मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर तो मैंने फ्लैट पे ही मतलब 2 या 3 लोगों के साथ में सेलिब्रेट किया। देन धीरे धीरे जैसे हॉस्टल वगैरह हम लोग पहुंचे तो ये हुआ कि हाँ भाई ये ग्रुप बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो एक गैदरिंग हो रही है। तो उस गैदरिंग से ये होता है कि आपको लोगों के बारे में पता चलता है, आप अपने सीनियर्स को जानते हो, जूनियर्स को जानते हो कि इसमें क्या कैपेसिटी है। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है कोई किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है। तो उस चीज में है कि अगर कुछ आगे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, कोई ग्रुप बनाओ, तो एक बेनिफिट भी हो रहा है, प्लस वो ग्रूम भी हो रहा है और उनको नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो ये ज्यादा बेटर है। For me personally, when I talk about hostel, genuinely hostel was the best place to be. I had never been in a hostel and I always wanted to be in one, like living with so many people, living around with all your friends. And I would say that the best time I have had in a hostel, in any way, like whether you are upset, you have people, whether you are happy, you have people, and you don't have one person, you have so many people. Like if you have a happy news to celebrate, you will get people everywhere, so you can tell anyone anything, and like they also get happy seeing your happiness. So yeah, I would for sure say that the hostel life was the best part. And I would like to mention some of the professors. They were really really good, because as already Saksham mentioned, there is a language barrier, so the general people, they don't really get us, and they really sometimes they even
even shout back at us that why are you speaking English? Don't you know our language? Like they take it as an offense that we are not able to get to their language and we know English. But our professors are very sweet and very nice in that way. And some of the professors, especially Talina ma'am, Alnas sir, Zikanshan sir, and a lot of therapy teachers, some of the teachers have really made such an impact in my life that I'm never gonna forget them in my whole life. So yeah, I would summarize it up to those teachers only. Really good teacher. जी नो आई विल मतलब मैं तो फ्लैट में ही रहा हूँ टोटल 6 years, बट आई विल से कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मुझे हॉस्टल मिलेगा, वो 6 year तक वो प्रॉमिस the पूरा point. नहीं हुआ. That's the point. और अभी फ्लैट्स का फॉर रशिया स्पेशली फॉर कजान ये सीन है कि मतलब वहां पे लाइक रेंट इज फॉर 40 to 50,000 per month, and also I will highlight without registration. So Yes. everyone of in the panel knows how much I have suffered for registration. Even one time for registration, they said that you have to go back to India and you are never coming back here. So I will say कि select the like this Better select agents. the better option, that agents or anything that they will give you hostel and everything. I will say like that. Yep, And I will want to close my add one thing to this. What Vedant has mentioned, this situation is same currently also. हो क्या रहा है कि जो भी एजेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको मतलब दिखाते हैं लाइक ये हम करेंगे, ये हम कर सकते हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते. एक Yeah. मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी ने आपको हॉस्टल प्रॉमिस किया है, टेक ऑन अ स्टैम्प पेपर और एटलीस्ट रशिया जो भी उनका Yes. कंपनी है उस पे लिख के लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल XYZ Petrova ma'am or somewhere, like I am the official of this university and I am signing a document for you that your accommodation is reserved. So from this year we are working on this because as you all guys know, मैंने भी एक अपना कंपनी शुरू किया है, तो this I am Yeah. going legally for Abroad Educations, the firm name. So what we are doing is we are giving a letter. We are not like, हम कुछ छुपाते नहीं है, डायरेक्टली डीन से बात करवाते हैं बच्चों का और डीन मैम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती है, होता है तो होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, सिंपल. हम ये कर सकते हैं क्योंकि झूठ बोल के या फिर आप ले रहे हो पैसा, दैट्स नॉट गुड. लाइक दैट क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एट द एंड. और स्टूडेंट्स फिर जो आते हैं आपके थ्रू या फिर आपके जो भी एजेंट्स हैं उनके साथ कनेक्शन तो लूज हो जाता है. लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, अगर आप एज अ मीडिएटर या फिर एज अ कंसल्टेंसी या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो काम कर रहे हो, तो यू शुड वर्क लाइक अ टीम, लाइक फैमिली मेंबर की तरह अगर ट्रीट करते हैं हम बच्चों को तो दैट्स बेटर, बिकॉज एक बच्चा आपको 100 एडमिशंस देगा. सो Yes. फर्स्ट ईयर गाइज, अगर आपको लिख के दे रहा है स्टैम्प पेपर पे कोई और साइन दे रहा है ग्रीन पेन से और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल कंपनी है, देन ओनली यू अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी. और आई विल से अगर कजान में हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो मत जाइए कजान, सिंपल सी बात है. आप अदर अलग यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट कर सकते हो. इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कजान ही जाना है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हो जहाँ पे अकोमोडेशन की सुविधा है, हॉस्टल 100% दे रहे हैं. देन ऑल्सो ये चीजें हमें पता नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी वेदांत के साथ जो हुआ, वेदांत वाज टेलिंग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हमें भी हॉस्टल मिलने के लिए 2-3 वीक बाहर रहना पड़ा था. एंड रवीना ऑल्सो नोज दैट, रवीना के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था. दैट्स गुड. लाइक सम कंसल्टेंट्स वर रियली गुड, दे डिड अरेंजमेंट प्रॉपर्ली. सर मैं दोनों जगह रहा. फर्स्ट 4 years में फ्लैट में रहा एंड देन लास्ट 2 years में हॉस्टल में रहा, तो मुझे दोनों का पता है. एंड सर वेदांत आनंद मैं और 2 लोग हम साथ में रहते थे. सर वेदांत का हमें पता है कि उसे कितनी प्रॉब्लम हुई. जी. लाइक हम जब फ्लैट में रहते थे तब विदाउट रजिस्ट्रेशन ही रहते थे. सो इट्स लाइक इट इज इलीगल, क्लियर कट सर इलीगल प्रैक्टिस ही है ये. और फिर हमें हॉस्टल मिला तो हमें फिर कोई टेंशन नहीं था सर. और आपने भी जैसे बोला, अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा तो कजान में मत आइए, क्योंकि करेक्ट है सर. आई 100% टोटली एग्री विद इट, क्योंकि हॉस्टल सर अगर नहीं रहा ना तो बाहर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर फ्लैट पर. सो आई थिंक चूज वही एजेंट करो जो आपको 100% हॉस्टल दे और श्योरिटी ले आपके हॉस्टल की. सर आई वांट टू टेल हाउ वी एंडेड अप इन द अपार्टमेंट. सर जो हम एडमिशन के टाइम पे जब हमारे एजेंट को हमने पूछा था ना, तो आई थिंक दैट एजेंट के हाथ में हॉस्टल देना नहीं था जी. तो आई डोंट थिंक ही हैड सीट्स एट दैट टाइम. सो ही टोल्ड अस दैट हॉस्टल में तुम्हें कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी, हॉस्टल बहुत बुरा रहता है, हॉस्टल बहुत खराब रहता है. एंड और उसको शायद कुछ कमीशन भी मिलता था फ्लैट पर. तो इसीलिए उसने हमें डाइवर्ट करके फ्लैट पे ही भेज दिया था. सो ये भी होना नहीं चाहिए, इसका खास ख्याल रखो. जी. या I will also add, sir, like me and Anand also share the one same story. Like we were not coming to Kazan State Medical University. We were going to Volgograd. So I remember it was Dashera, and in evening they said that you are not going to Volgograd either because there are some visa issues and everything. But I have my friends there. They said that there is no issues of visa and nothing. So like अगर टाइम पे तुम ऐसा कह दे तो करे ये नहीं वो कर लो, ये नहीं वो कर लो, वो कह देते कि चाइना चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, फिलीपींस
फिलीपींस चले जाओ. So also I will say कि choose your contractor wisely. हमारे साथ ये बात हुई थी कि हम पहले फर्स्ट ईयर में बहुत लोगों के साथ ये बात हुई होगी, या फिर जो भी फ्यूचर जो जूनियर्स आने वाले हैं तो उनको ये बात बोलना जरूरी है. हमें इस बात से बोला गया था कि आपका वोल्गोग्राड में हमारा पूरा वीजा और यूनिवर्सिटी का लेटर भी आ गया था, लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी कि जब स्टार्टिंग में वीजा अप्लाई करते हैं तो 3 महीने का ही वीजा मिलता है या फिर 1 महीने का वीजा मिलता है. हमें बोला गया था कि आपका 3 महीने का वीजा लग गया है, 3 महीने बाद आपको वोल्गोग्राड से वापस इंडिया आना पड़ेगा और इंडिया से वापस जाना पड़ेगा. मतलब एक जो ट्रिप है वो फालतू के वेस्ट हो जाएंगे पैसे. तो आप एक काम करिए, आप दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी में ले लीजिए एडमिशन. हमें तब ये बात पता नहीं थी कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद वीजा एक्सटेंड होता है पूरे साल के लिए. तो इस बात से भी जो कंसल्टेंट्स रहते हैं वो झूठ बोलते हैं कि नहीं वापस आना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे एक टिकट जो फ्लाइट की ट्रिप है वो ज्यादा पैसे जाएंगे. तो उसको सिंपल एक एडवाइस है कि ऐसा नहीं होता है. जो अगर तुम्हारा 1 महीने का या फिर 3 महीने का वीजा लगता है तो वो उस यूनिवर्सिटी जाने के बाद एक्सटेंड हो जाता है पूरे 1 साल के लिए. तो ये बात प्लीज ध्यान रखिए जूनियर. मुझे एक एडवाइस ये करना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर पे ट्रस्ट मत करो. पहले तो सबसे पहले आप क्या करो, उस कॉलेज की स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करो, 10-15 स्टूडेंट्स को ढूंढो, सबसे बात करो, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा. एंड देन फाइनली ट्राई टू फाइंड आउट कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है उससे वो टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू स्टूडेंट से बात कराओगे, वो अपने स्टूडेंट्स देंगे जिनको वो पे कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ. तो आप खुद से ढूंढो. आज फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपको आराम से मिल जाते हैं. तो उस कॉलेज के बच्चों को ढूंढो, उनसे पूछो, तो आपको खुद अपने में पता चलेगा कि है क्या, रियलिटी क्या है. जी एग्जैक्टली फराज, वेल पुट. बस एक छोटी सी बात ऐड करनी थी कि जैसे हॉस्टल वाली जो बात है, there are both sides to it, and how your hostel will look like and how your hostel life will be, it completely depends on you. Because same hostel, third hostel में there were rooms where you would go and you would be like, अच्छा ऐसा भी हो सकता है hostel, and then there were rooms like भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए hostel genuinely. So I think it would completely depend on whose room it is and how you are taking care of it completely. What are the some benefits of studying MBBS abroad in your opinion? आपको कुछ लगता है ऐसा बेनिफिट आपको मिला, या फिर जो आप अभी इंटर्नशिप करोगे आपको पता चलेगा, आई नो, बट स्टिल आपको लगता है यहाँ पे आने के बाद कुछ बेनिफिट्स आपको मिले हैं या फिर बेनिफिट्स है? एक इंडिपेंडेंट रहने का फर्स्ट ऑफ ऑल वो जर्नी शुरू हो जाती है हमारी. एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी कुक फॉर आवरसेल्व्स, वी टेक केयर ऑफ आवर फ्रेंड्स, आवरसेल्व्स. और जो छोटी मोटी चीजें होती है वो हम अपने फैमिली को तो नहीं बताते, तो वो भी हमें ध्यान रखनी होती है. तो एक सेंस ऑफ लाइक जनरल एक सेंस आ जाता है, एक मैच्योरिटी आ जाती है. बस ये मैंने देखा. I have, like, firstly, there are so many pros of studying abroad that I really did not know when I didn't go there. It's just once you experience the journey, then only you get to know. But one of the main ones that medically I would say is that you get acquainted to so much more about medicine. Because in India, when you study about the Indian ways of medicine. But when you're studying in Russia, you get to know, firstly, they teach a lot about different, like US guidelines you read, then you go for Europe, and then because you have to come back to India, you have to have a knowledge about India as well. So that itself gives you a very good medicine knowledge overall. And I haven't seen that really in Indian medical graduates as much as I know about. So that one. And secondly, I would say that a doctor is not just about the bookish knowledge. They must know how to apply it and how to be street smart. And I feel that going abroad has really made a lot of people street smart. Personally, I would say I was very, I was a very naive person when I was in India. But once I went abroad, I have learned so much about life, about in general that we say jugaad. So yeah, I would say that these two would be my main pros after going abroad. Yeah. Sir, first of all, the life and exposure of the peoples, the environment, and also there we only don't get Indians, we get Egyptians and the people from the globe, sir. And I will add in studies, I will say that differential diagnosis, sir. सर वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है differential diagnosis of the diseases, like symptoms, like treatment, clinical, like if there is a pain in one disease, the pain is for 15 minutes. In the another disease, they have the same clinical features, but it is also for 15 minutes, but it gets relieved by the medicine. So, sir, I will say differential diagnosis, and I will like to thank the therapy department and the primary care department. The primary care department controls that we used to get the case, and within like
20 or 30 minutes we have to like solve, we have to what differential diagnosis, refer, treatment. और Diagnostics. जब Yeah. that chaos, that chaos in mind was same during the 12 January examination, sir. So I will say that. Yeah, agree. करेक्ट सर, वेदांत ने जो बोला एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि ड्यूरिंग एग्जाम द क्वेश्चंस वेर लाइक द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट वाज गिवन, सो वी हैड 150 मिनट्स, सो इट वाज लाइक सीइंग 150 पेशेंट्स इन 150 मिनट्स, हमें ऐसी फील आ रही थी। तो ये यूनिवर्सिटी ने सर बहुत हेल्प की इस मामले में। एंड वन मोर थिंग सर, गायनेक and primary care medicine, and sir one more ortho, nobody mentioned Ji. ortho, Yeah, ortho but is I think great. that ortho Durgam sir, he helped a lot. Yeah, Durham. Yes. Like everything he taught, like I remembered, and it was 80 to 90% it was in the syllabus. Yes. And sir आप बोल रहे थे ना कि यूनिवर्सिटी में और क्या डिफरेंस है लाइक स्टडिंग अब्रॉड। सर आई थिंक from since our first year we had our internship, like we used to work in hospital every year for 1 month. Okay, so 1 month, first year, second year, third year to sixth year, like 6 months we worked every month. And then one more thing sir, last 3 years we had our classes in hospitals itself, so we saw patients here and there, so it was like our internship only. 6 months that in internship, and the last 3 years we used to study in hospital itself. We had a big classroom or big halls in the hospitals. They were for teaching purposes, so we got acquainted with the hospital, like the area and all, so it helped a lot sir. And here Yes. I have heard that in India they don't do practice before the completion of the degree of the Yes. course. Yeah. So only after the completion of the course they will have internship. Yes. So we had a plus point there also. Yes, pretty similar with me guys. मैं सिंपल भाषा में इसे पुट करूंगा, लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हो एनी लाइक क्लिनिकल्स में, देन ओनली यू विल गेट द एक्सपोजर, आई विल से, बिकॉज अगर खुद आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट उतने क्या कहते हैं क्यूरियस नहीं हो, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्थो में इंटरेस्टेड था, तो एट रशिया लाइक आवर हॉस्पिटल नंबर 7 वाज देयर कजान में, वहाँ ऑर्थो के ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े। आई वॉज मी एंड माई फ्रेंड विश्वास, माई रूममेट, वी वर लाइक पूरे दिन में 4 से 5 सर्जरी हमने असिस्ट कर दी। लाइक इट वाज लाइक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग दिस, एंड वहाँ के डॉक्टर्स ने भी हमें कहा कि यू गाइज वर रियली ग्रेट, क्योंकि हमने पहला ही ऑपरेशन पहले बार ही हम देख रहे थे, वी वर असिस्टिंग वेरी वेल, लाइक सब कुछ क्लिनिकली सर ने बोला लाइक ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये चाहिए, हम वी वर असिस्टिंग एवरीथिंग, लाइक रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे अनलेस एंड अनटिल आप खुद अप्रोच कर रहे हो। अगर आप कहोगे नहीं ठंड है मैं नहीं जा रहा और ये है वो है, सो ये ऐसा तो काम नहीं चलेगा। हाँ सर, मैं जब फर्स्ट ईयर पे गया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे एक साइंस क्लब करके था, उससे हमने ज्वाइन किया था, अभिलाषा भी थी मेरे साथ, तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा सा फील आया था कि यार फर्स्ट ईयर में हम कुछ कर रहे हैं जो मेडिकल वाली फीलिंग दे, तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग था। और फिर ओवरऑल अगर मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करूँ तो एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है आपकी, मतलब मुझे लगता है कि आप खुद में अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, यार मैं ये भी कर सकता हूँ। लाइक आई नेवर कुक्ड इन माय लाइफ, मतलब मैंने मतलब इंडिया में था, मुझे नहीं पता था कि मैं कुकिंग कर सकता हूँ, बट मैं 6 साल तक जाते जाते 400 लोगों की दिवाली में खाने बनाने लग गया था। तो मुझे खुद नहीं पता था अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों के साथ भी यही सेम चीज रहा होगा। तो आप बहुत कुछ, मतलब इट्स स्टडी पर्पस से तो ठीक है, आप पढ़ते हो, इंडिया में भी पढ़ाते हैं वहां पे, बट एक होता है ना आपका विजन थोड़ा बड़ा होता है वहां पे जाके। आप अभी लोग प्लैब और यूएसएमएल की बात करते हैं कि हाँ हमें उसको देना है, उसके एग्जाम्स के कैसे करना है, तो बहुत एक होता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, यही कहूंगा मैं। आपने बहुत अच्छी बात की सर कि अब जब आप कजान से वापस आते हो तो इतनी याद आती है सर कि क्या बताओ आपको। मतलब कजान मतलब कैसा है, सिंपल भाषा में बोले तो आपने पूछा कि बेनिफिट क्या है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फॉरेन में पढ़ने का और इंडिया का। सिंपल भाषा में बोले कि अगर आप फॉरेन में जाते हो मतलब खुल जाते हैं समझ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रवीना ने कहा इंडिपेंडेंट, और अपन पराग जैसे कहा कि अपन पूरी मतलब अपने क्या क्या स्कोप से अपन क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये भी अपने को पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे
और बेनिफिट्स और टीचिंग में बताओ, बेनिफिट्स में सर इंडिया में कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल पूरा एक हॉल है, वहाँ पे 50-200 स्टूडेंट्स एक पूरा ग्रुप में पढ़ाते हैं। कजान में वैसा नहीं है सर। एक मेरा वहां जाने का ये भी प्लस पॉइंट था कि नहीं यार, इंडिया में कैसे होता है कि अगर 100 बच्चों को पढ़ा जाए लेक्चरर ने तो वो ध्यान नहीं रहता, लेकिन कजान का बहुत प्लस पॉइंट फैक्टर ये था कि बस 15 लोगों का ग्रुप रहता है और उनको पढ़ाते हैं, मतलब वो टीचर सब पे फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था कि अगर अगर टीचर सब लोगों पे इक्वली कॉन्सेंट्रेट करेगा, इक्वली मतलब देखेगा कि क्या है क्या नहीं, तो जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे नॉलेज को, और प्रैक्टिकल स्किल्स भी अच्छे हो पाएंगे उसके। तो एक एक वहाँ का बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है। और बाकी के अगर बताओ, आपने और पूछा था ये कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो उसका ए प्लस फैक्टर है कि जो अपना सर्जरी, ऑब्स गायनी और थेरेपी, सॉरी मेडिसिन, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कजान में बहुत बहुत अच्छे से करवा लेते हैं सर। इसलिए एक बहुत अच्छा प्लस फैक्टर ये भी है कि कजान स्टेट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। I guess resulto, I will put it like this. Resulto, it's a personal, subjective matter, I will say, because that's pretty sure. अगर आप खुद पढ़ोगे ही नहीं, खुद इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो आप कैसे क्लियर करोगे? सिंपल सा फंडा है। क्योंकि आज बच्चे जो नए आते हैं वो भी कहते हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसा है, ये ऐसा है वैसा है, लाइक बट कुछ यूनिवर्सिटी का परसेंटेज 0 होता है। दैट डजंट मीन दैट दैट यूनिवर्सिटी इज बैड, बिकॉज आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, खुद अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो कैसे ही होगा। और सबसे मेन बात, आई गेस सीनियर्स मैटर्स अ लॉट, लाइक उनका इंस्पिरेशन जो आपको मिलता है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सर एक और पॉइंट था कि इंडिया में जो पासिंग, फॉर एग्जांपल अपने फॉर एग्जांपल एमबीबीएस की जर्नी में पासिंग परसेंटेज इंडिया में शायद 45 या 35% है, yes, कुछ भी है, लेकिन जो फॉरेन में रहता है वो 70% पासिंग रहता है सर। तो एक और वहाँ पर भी है कि बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है पास होने के लिए भी। yes, एक और वो प्लस पॉइंट भी है कि बच्चे जो फॉरेन के उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है जी और इसीलिए उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं जी। Sir, on सक्षम every point we have to जी prove ourselves, sir. जी FMG, sir. यस, आप अभी एफएमजी Yeah. क्लियर हुए हो। अब जब आप मतलब वो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उसके बाद भी देखना आपको कितने मतलब Yes. प्रॉब्लम्स फेस करने पड़। मेरे वक्त तो मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला, एक हफ्ता में बस कॉलेज के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये डिपार्टमेंट वहाँ घुमा रहा है, वो डिपार्टमेंट वहाँ घुमा रहा I will say, sir, वीजा डिपार्टमेंट ने तो ये सिखा ही दिया है, सर। है। एग्री या वीजा डिपार्टमेंट, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। ये मैं तो लाइक या मैं आर्टिक गया था Yes. और मेरा वीजा एक्सपायर हो गया। मैं 7 दिन लेट आ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको डिपोर्ट कर रही हूँ। लाइक फिर मैंने अपने टिकट्स के जेरोक्स निकाले, ऐड किए, डीन से परमिशन स्प्राव का लिया, तब जाके वो लोग माने। लाइक लिटरली लाइक बहुत स्ट्रगल होता है फॉरेन में। हाँ, वीजा, यू हैव टू रिन्यू योर वीजा ऑन टाइम। मतलब या यू कैन। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर एक शॉर्ट ट्रेलर दे देता है इंडिया में क्या होने वाला है करके। या मूव ऑन करूंगा, फाइनेंसेस एंड स्कॉलरशिप्स। देखिए, मेरा जो थिंग था, मैं आया था तो आई हैड एजुकेशन लोन फॉर फर्स्ट 3 years, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अगर कुछ आपके लिए होगा, लाइक आपने कुछ फाइनेंसेस में डिफिकल्टीज फेस की होगी, तो आप शेयर कर सकते हैं आपकी स्टोरी। लाइक फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा पैसे जाने वाले, ये पेरेंट्स ने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्टर थ्रू जो पेमेंट करते हो फीस का, वो तो एक होता ही है, प्लस तुम वहां जाते हो तब तुम्हारा खर्चा और बढ़ जाता है। तुम्हें जैकेट्स लेने पड़ते हैं विंटर के लिए, तुम्हें हॉस्टल का पेमेंट करना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर वो करके दे रहा है देन इट इज गुड, बट और भी चीजें होती है, वीजा वगैरह ये सब, इनके लिए भी पैसे लगते हैं। तो पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। एंड सेकेंडली, माई मदर पेड माई कॉलेज फीस एंड माई डैड मैनेज माई लिविंग एक्सपेंसेस। तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट हेल्प ये हुई थी यूनिवर्सिटी से कि हर साल 10% स्कॉलरशिप, 15% स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, तो उससे थोड़ा बहुत 30-40,000 कंसेशन हो जाता है। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ आर यूनिवर्सिटी। कुछ अलग यूनिवर्सिटीज भी होते हैं जहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें से एक बंदे को एक स्कॉलरशिप मिलती है, बट कजान में ऐसा नहीं है सर। स्कॉलरशिप का बेनिफिट तो है ही सर, बट वन मोर थिंग, द मेन थिंग आई वांटेड टू ऐड, दैट हाउ वी पे आवर फीस। वी कैन डायरेक्टली गो टू द बैंक्स, एंड बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं सर। आजकल टिंक ऑफ के बैंक से डायरेक्ट फीस भरते आती है, और स्वेयर बैंक, देयर आर बैंक्स देयर
we can pay our fees efficiently. And sir, ये सिर्फ हमारे कॉलेज में होता है. My जी friend, he is in another college. I can't take university's name. या In the वो कॉलेज में ऐसा होता है कि जो भी बच्चों की फीस है वो कॉन्ट्रैक्टर लेता है खुद, and then he earns commission on it, and then he pays it further at the end of the semester. He takes in the beginning and he pays at the end, so he gets commission. So sir, ये तो गलत है ना. Don't choose universities like this. Like अभी तो हम जब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे तब we will take the name of the university. जी Okay, and then at that time ये जो इंटरव्यू जो भी बच्चे देखेंगे in future after जी 2 years, 5 years or 10 years, they have to keep in mind this, because this is a big thing. We can't give our money to anyone else like this. So जी हाँ, that's किसी it. पे ट्रस्ट ये भी करना चाहिए. हाँ हाँ और हाँ. हाँ about हम क्यों दे मनी सर मनी एक्स्ट्रा पैसे मनी हमारे. exactly. So the first year fees is I think sometimes the agents they take it from you and then they pay. बट कुछ यूनिवर्सिटी में खुद जाके पे भी कर सकते हैं फर्स्ट ईयर का फी. बट सेकेंड ईयर से तुम इतने इंटेलिजेंट हो जाते हो कि तुम खुद पे करना स्टार्ट कर देते हो फीस. तो किसी के हाथ में पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट. सर आई विल से दैट जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर्स कैरी करते हैं. जी तो ऐसा रहता है कि कोई देयर इज वो थर्ड पर्सन हु कम्स हु कलेक्ट आवर डॉलर्स, और इसके मन में जो रेट आता है वो लगा वो देता चार्ज. है. सो आई विल हाईलाइट दैट कि थोड़ा कन्वर्जन चार्जेस यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दैट. सो ओके दैट्स ऑल. या अभिलाषा. Yeah, I just wanted to add about the loan thing only because I have an education loan, and to be honest, while discussing about loan or financial things, it's a big decision to take. But I would just say to all the students that go for it, because firstly, you're getting to do what you always wanted to do. Secondly, you will once your education gets completed, you get a 1 year without any interest free period. Free period. So that is there because I didn't know about it, and it was a big relief when I got to know about it that there will be 1 year after my completion of education that I'll get, and there will be no interest. So I just wanted to add that point. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पहले जाने से पहले FMG एग्जामिनेशन का, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद रहने खाने का या फिर जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन. सो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बेसिक है. FMG एग्जाम कैसा था? सिंपल. आपको कैसा लगा? बिकॉज मेरे टाइम मुझे ठीक है इट वॉज गुड बट मॉडरेट लेवल का ही होता है. लाइक इट्स नॉट दैट टफ आई विल से, बट इट इज क्लिनिकल बेस्ड. सो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा पेपर देखने के बाद पहला, वो शेयर करिए एक वन बाय वन. एग्जाम के पेपर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जर्नी. वो जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर है, और शायद एक पेपर देते वक्त आप एग्जाम में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, वो अपने आप आंसर्स आते हैं अगर आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है. और ऐसा भी नहीं है कि आप जो चाहिए 6 महीने में पढ़ते हो आप उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन करते हो. ये पूरे 6 साल का एक तरह से समरी होता है आपकी नॉलेज का. और वो कहीं पे भी मतलब जैसे मैंने प्राइमरी केयर वहां पे पढ़ा तो वो बहुत ही यूजफुल आया यहाँ पे आके. उस वक्त लगता था क्या पढ़ रहे हैं यार, प्राइमरी केयर इतनी टफ है, डोज क्यों याद करा रहे हैं, साइड इफेक्ट क्यों याद करा रहे हैं. और अभी वो लगता है कि यार वो वर्थ था. मतलब हमने गाइडलाइंस पढ़ी. जब यहाँ पे आके हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बोलते हैं कि हाँ हमने भी गाइडलाइंस पढ़ी है, वरना एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हमें पीडीएफ से पढ़ाते हैं, बुक्स नहीं होती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में. तो वो एक चीज बहुत डिफरेंशिएट करता है आपको कि हाँ आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, एक अच्छे सोर्स है आपके पास, तो वो हेल्प तो करता है आपको कहीं ना कहीं. और हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट पार्ट ये रही कि सीनियर्स की रिकॉर्ड बहुत अच्छी रही है हमेशा से फॉर FMG. तो वो हमेशा बूस्ट करता था कि अरे इन्होंने कर लिया है तो हम भी कर लेंगे. वो एक कॉन्फिडेंस हमेशा देता रहा इस जर्नी में. एग्जैक्टली लाइक ये तो सच है बात. सीनियर्स का रिकॉर्ड तो अच्छा था, मेरे सीनियर्स थे उनका भी रिकॉर्ड अच्छा था. और खासकर हम जो मिलिंद सर की बात बहुत होती है इस केस में, क्योंकि आप उनका इतना बड़ा मतलब ऑरा बन चुका था. हम जाने के पहले उनका ऑरा इतना बन चुका था. दैट गाय हैज क्रिएटेड लाइक हिस्ट्री. पहला ऐसा बंदा जिसने एम्स का मतलब 125 रैंक के साथ निकाला, बीइंग अ कजान स्टेट गाय. सर लाइक मेरे पापा सब मुझे हमेशा कहते थे कि वो जब मैं एयरपोर्ट पे था तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि तेरी FMG क्लियर हो चुकी है, तू बस MBBS करने जा रहा है. तो वो हमेशा से मुझ पे वेटेज था. और वो मैं किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाता था तो वो कह देते थे कि इसकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी. जबकि जो मेरा नीट का स्कोर था उस पे से लग रहा था कि क्या मेरी सिलेक्शन हो गई है. तो वैसा वाला सीन था. तो वही सर वही था कि इट वाज अ ड्रीम फॉर माय मदर एंड फादर.
and my brother also, like my brother is also a doctor, so I think I have done NEET. Yeah. हमेशा से एक प्रेशर होता है कि एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो पेरेंट्स का तो होता ही है ऑफ कोर्स, बट पेरेंट्स थोड़े पॉजिटिवली थिंक करते हैं, बट जो रिलेटिव्स होते हैं वो नेगेटिव हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स देते रहते हैं। जैसे अभी कोविड हो गया, वॉर हुआ, हमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ कजान में, बट रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ उसका। और उसका इम्पैक्ट हमारे पेरेंट्स पे हुआ, पेरेंट्स की साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो गई, उसका हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कजान में, और वहां पे हम बहुत सेफ थे फर्स्ट ऑफ ऑल। और पढ़ाई के लेके तो यही बोलूंगी कि मैनिफेस्ट करो अच्छा और पॉजिटिव थिंक करो तो ही होगा। इवन इफ यू गेट अ सिंगल नेगेटिव थॉट ना, तुम उसको ब्लॉक कर दो, बस ब्लॉक कर दो। Yeah, I just wanted to add that the exam was moderately difficult, and yes, there were questions mixed. There were very simple questions, but there were certain clinical questions also, which has a very clinical stemming, and then they have asked for a simple thing. But I would say that for anyone who is watching right now and is studying, you must know that much. If you are coming and you're gonna work as a doctor, you are held accountable for lives of people, and if you don't know that much, I think this barricade is very important for all of us, because as we have studied with multiple kind of students, there are students who genuinely don't give their best there. So if they come directly and they are given an achievement of like just directly going to the patients, I think it is harmful for the patients also. So I would say that this exam is a must, and you should take it as something that will give you credibility, because when you say that you have cleared your exam already, they know that, okay, they know that's why they have passed the exam. So this is more like an achievement rather than like a barricade. So I would say this is important. Sir, talking about the exam, I think the discipline and the process, that thing changed everything in my life. Like I never used to get up early in the morning. I never used to pin the alarm. Like Anand, he used to call me in the morning, and I would get up for the classes. But these things are exam, everything changed. Like I used to get up, I used to sleep only 5 hours. I gave 100% every day, each and every day. Yeah. So everything I did in these last 6 months, all this I saw during the exam. The questions were easy, means not all, but the questions which were supposed to be easy, that they seems perfectly fine for me. And the ones which were hard, those we can't do anything about it. So I solved the exam. I slept in between the breaks and gave it. But after the exam, sir, as you know, I used to talk with you. Everybody, not only me, everybody felt that हमारा होगा कि नहीं. The exam was difficult. This time there was a sense of like confusion कि होगा कि नहीं. That was there, and luckily we received our result in 7 days. That was the best part. सर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मॉडरेट कभी हार्ड नहीं था और इजी भी नहीं था। और एग्जाम अगर सोचे कि कोई बोलते हैं कि नहीं, अगर पूरे साल नहीं भी किया, पूरे 6 साल नहीं भी किया, और अगर लास्ट के 6 महीने में किया तो हो जाता, तो मैं बोलूँगा ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एग्जाम में मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम, वो बात तो सही है कि 6 महीने में जितना तुम ज्यादा करोगे वो एक बेनिफिशियल फैक्टर रहेगा तुम्हारे एग्जाम पास होने में। लेकिन जो 6 साल की मेहनत तुम्हारी, जो तुम पढ़ाई कर रहे 6 साल में, जितने भी सब्जेक्ट से अच्छे से पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा तुम्हारा नॉलेज बन जाता है और एक बेस तुम्हारा पूरा अच्छे से फील हो जाता है। इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट है 6 साल की मेहनत, और जो 6 महीने में तुम कर रहे हो वो तो एक प्लस पॉइंट है ही। तो अगर ये दो मिला के अगर तुम बहुत करोगे तो 101% तुम्हारा FMG आराम से क्लियर हो जाएगा। सर ये मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत लंबी जर्नी होती है MBBS की, वहां से फिर यहाँ पे 6 महीने करना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है सर। तो वहाँ पे रशिया में भी जब मैं था तो 4th ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा पढ़ना जी। एंड धीरे धीरे करके एक सब्जेक्ट उठा के फिर यहाँ पे मतलब वहाँ पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 6 महीने में आके जो बूस्टअप करना है उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वो 6th ईयर में आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बना लेते हो
और फिर यहाँ पे आके बस आपको वो कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। मतलब वो तो समझ में आ गया यहाँ पे आके कि रिविजन इज द की, वो तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि एमबीबीएस की जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, आप पूरा कर ही नहीं सकते, आप 100% नॉलेज रख ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। तो आपको वही होता है कि 70% को करो, मगर वो 70% 100% होना चाहिए आपका, तभी आप कोई भी एग्जाम क्लियर करते हो। और आपको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क जो कहते हैं ना वो करना होता है। हार्ड वर्क तो है बट आपको स्मार्टली भी करना होता है, और वो शायद ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, और आप खुद इस जर्नी में सीख जाते हो खुद ब खुद, बार बार टेस्ट देके, एग्जाम देके, तो वो समझ में आता है आपको। एग्जाम को लेकर तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि पहला पेपर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ फंस गए। पर ये था कि चलो अब जो एक तो निकल ही गया है, दूसरा ऐसा कि क्या पता, पहले सोच के मतलब हर कोई यही बोलता था कि यार पहला वाला अच्छा कर लो, अगर यहाँ ठीक ठाक मार्क्स ला गए तुम तो सेकंड वाले में कर ही लोगे, ऊपर नीचे भी हुआ तो जब पहला देखने के बाद में लगा कि यार दूसरा कैसा आएगा जब पहले के ये हाल है। पर अंदर से मेंटेलिटी ये थी कि चलो यार इतना कुछ तो किया है, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये बस एक 6 मंथ की एक जर्नी थी, आप पूरे 6 ईयर से आप जो आपने एमबीबीएस में पूरा किया है तो आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देगा। क्योंकि जैसा फराज ने भी बोला कि प्राइमरी केयर ने हेल्प किया, ऑब्वियसली किया, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ तो चीजें आई वो आप सीखते हो। उस टाइम पे लगता है कि यार क्या ही पढ़ रहे हो आप, इतना क्यों ही पढ़ा रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट है, और आप जानते हो मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। तो वो तो हेल्प हुआ। और बाकी ये कि ऑब्वियसली, और बाकी कजान स्टेट में जो भी लोग मतलब अभी जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, या जो आने वाले, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि क्लिनिकल जितनी भी सब्जेक्ट है वो काफी अच्छे हैं। मतलब और लोगों के कंपैरिजन में अगर मैंने देखा है कि मैंने जब कोचिंग वगैरह जब भी की थी तो मैं देख रहा था कि उनके कंपैरिजन में हम लोगों की कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर मेडिसिन, सर्जरी और ओबीजीवाई का बहुत अच्छा खासा मतलब जो पढ़ाते हैं हम, तो उनका तो बेनिफिट आपको होता ही होता है। तो ये है कि देखो थॉट तो आपको आएगा, क्योंकि इनिशियली जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि यार अब तो हो जाएगा, मतलब अब तो ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता मुझे, तो आप एकदम बूस्ट में जाते हो कि हाँ अब रोक के बताओ। बीच में जैसे ही आप पहुंचोगे तब आपको लगा कि बहुत स्लो सा जा रहा है, तब लगेगा यार होगा नहीं होगा। फिर जब नवंबर दिसंबर पहुंचते तब तो ऐसा होता है भगवान, जो आप एम करते हो ना कि 180 190 लाने हैं, तब होता है प्रभु बस बस 150 से ला दे, उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, बस पास करवा दे बाबा। तो वही है कि जब लास्ट में आप पहुंचो तो मुझे भी थोड़ा आ रहे थे कि यार होगा नहीं होगा, बट मम्मी ये बोल रही थी कि नहीं तूने किए है मेहनत, तू हो जाएगा, तू ट्राई कर बस। तो वही था कि भाई मुझे पहले से लग रहा था कि शायद नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट में जाना है, घर वालों को कैसे फेस करना है वो सब थॉट चल रहे थे। बट एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैंने बस ये सोचा कि हो जाएगा, पक्का होगा, कैसे होगा नहीं पता, पर मैं करके तो आऊंगा और पास हो जाऊंगा। और बाकी भगवान की दुआ, थोड़ा बहुत मेहनत, लग गया भाई तो हो गया सब। नाइस नाइस। हाँ, सो दैट्स ग्रेट गाइज। आप सबके एक्सपीरियंस प्रिटी मच सेम ही है मेरे तरह ही, लाइक मेरे भी एक्सपीरियंसेस यही थे। ओम के साथ मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता था, लाइक ओम वाज ऑलवेज कॉलिंग मी लाइक एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। ही ऑल्सो हैड द सेम थिंग, सेम फीलिंग। और एट द एंड वही है, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ता है, बिकॉज अगर कोचिंग में आपको 200 मार्क मिल रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू गोना गेट 200 लाइक 200 मार्क्स एट द एंड। यू हैव टू बी ग्राउंडेड। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप 150 का मार्क क्रॉस कर रहे हो आपके ग्रैंड टेस्ट में हर बार, या फिर 140 प्लस रह रहे हो, यू गोना क्लियर इट फॉर श्योर, यू गोना क्लियर इट। बिकॉज जो कोचिंग के एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेप के हो गए या फिर मैरो के होते हैं, दे आर ऑफकोर्स दे आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। कुछ कोचिंग्स लास्ट क्लास में 2 एग्जाम्स देते हैं, वो ईजी होती है आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, बट वो दैट गिव्स आई गेस फॉल्स कॉन्फिडेंस। सो आपको आपकी तरफ से आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, और जो ग्राउंडेड रहे हैं एट द एंड तक वही क्लियर हुआ है। आपने पूछा था बैलेंस करना कैसे होता है यूनिवर्सिटी जी। बट आप जैसे भी अगर आप एफएमजी की प्रिपरेशन कर लो मान लो, या कोई भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो लाइक यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप अपने एग्जाम से 4-5 दिन पहले यूनिवर्सिटी की मटेरियल भी पढ़ सकते हो। बट जब आप कोई प्लेटफॉर्म की चीजें पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस टॉपिक में हो क्या रहा है। और आप कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो डेप्थ में भी नॉलेज आता है, बट हाँ आप उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस मत करो या क्वेश्चंस मत लगाओ, ये हो सकता है, बट ओवरव्यू आपको मिल जाता है। फिर आप यूनिवर्सिटी के जो भी मटेरियल है वो पढ़ लो, तो इट्स डुएबल, कोई बहुत टफ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप फॉरेन में जा रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है, सब लोग एंजॉय भी करते हैं, मतलब बैलेंस लाइफ है। मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि टाइम 6 साल का है बट लाइफ बहुत ही बैलेंस है। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तरह रश एंड टफ नहीं है, मतलब भाग रहे हैं, रोड लर्निंग करनी है, दौड़ रहे, ये नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हो वहां पे। देन लास्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन, दैट इज आपने अपना मेंटल हेल्थ कैसे रखा
In my case, if it comes to mental health in the 6 years, it all has to go to my friends, completely my friends. And yeah, they are my family over there, and I hope that it remains forever. And genuinely, if mental health is supposed to be answered, it was just my friends. That's it. That's great. Om? सर आई वांट टू ऐड, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक रहेगा. जो जी. बच्चे आने वाले हैं ना सर, उनके मन में एक सवाल रहता है सर, व्हाट विल बी द वेदर एंड हाउ विल दे मैनेज देयर जी. फूड, लाइक देयर डाइट एंड एवरीथिंग, देयर मील्स. सो आई डोंट थिंक सर देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम में से आप किसी को भी पूछे तो वो यही कहेंगे सर कि मजा आता है सर स्नो में या फिर विंटर्स में. और समर्स तो सर वहाँ के Perfect. मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं सर, No worries. विंटर से भी अच्छे. और सर जी. फूड की बात करें ना सर, यूनिवर्सिटी के बाद जब हम घर आते हैं ना सर, तो ठीक है, मैक्सिमम 1.5 आवर लगता है सर. तो वो भी हम सर जब इसमें थे, फ्लैट पर थे, तो सब मिलके बनाते थे, तो मजा आता था सर. हम वेट करते थे कि कब कुकिंग का टाइम आएगा, तो 1 आवर में हम सब निपटा लेते थे, और मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर. तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन के बारे में कोई लोग बॉदरसम रहते हैं, तो इसके जी. बारे में नहीं सोचना चाहिए सर. जी. जी. एवरीथिंग इज मैनेजेबल, सब कुछ हो जाएगा सर. That's great. सर आई विल से कि सैटरडे संडे को मतलब पार्टी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है. एंड ट्राई एवरीथिंग देयर, Yeah, that's ट्राई great. एवरीथिंग देयर. And you should not miss Saint Petersburg and Moscow. That's all. That's You great. should go there. Perfect. That's great. That's great. So at the end, I want to conclude this podcast by Thanksgiving. So thank you, Ravina, Om, Vedant, Abhilasha, Saksham, Anand, Ankit, and Faraz. So all the doctors on the podcast, thank you for your time, and thanks for everything, guys. थैंक यू सो मच भैया फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट. हाँ भैया. और आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, मतलब कि आप पॉडकास्ट वगैरह ले रहे हो. इससे मुझे लगता है कि जितने भी जो लोग आएंगे या जिनको जो भी डाउट है, तो बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर वो लोग देखेंगे इसको. तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी है, मतलब ठीक है, अगर आप जो भी चीज करना चाह रहे हो, प्रॉपर जानकारी लो, इन्फॉर्मेशन रखो, और देन आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो, हम ये नहीं बोले कि आप कजान स्टडी करो, जहां भी जाना चाहते हो, बट एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके ही जाओ. That's great. मैं anyone? बोलना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे 9 लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जो डिजर्विंग थे, जो नहीं कर पाए थे. पर इंडिविजुअल जर्नी होता है, तो व्हेन यू लुक एट दिस पॉडकास्ट और एनीथिंग, तुम्हारा जर्नी खुद लिखने वाले हो. तो किसी एक का डिसाइड जो हुआ था कि जैसे मैंने क्लास नहीं लगाया था कोई, तो मेरा वो था कि मुझे ऐसा करना है, तो किसी और का अलग रहता है जर्नी. तो तुम अपना जर्नी खुद लिखो, एंजॉय करो, साथ ही में फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, और जैसे मेंटल हेल्थ का पॉइंट मेंशन हुआ था, वो भी करो, ट्रैवल करो, और ओवरऑल हैप्पी रहो. वहां पे तुम जा रहे हो तो तुम ऐसा मत सोचो कि एक जेल में जा रहे हो, ऐसा मत सोचो. तुम सोचो कि एक तुम कुछ प्रूव करने जा रहे हो, वहां पे खुद को प्रूव करने जा रहे हो. और जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हो, तब वो तुम क्लियरली प्रूव करते हो सारे लोगों को. ऑल्सो जो कि फर्स्ट ईयर चिन्मय, वाले यू जो भी जाते प्रोवाइडेड हैं, अस जा कि जा ये तुमने प्लेटफॉर्म दिया हमें टू टॉक अबाउट आवर जर्नी. वेरी थैंकफुल टू यू टू. You're welcome, guys. You're welcome. छोटी सी चीज मैं ये बोलूंगा कि जो भी फर्स्ट ईयर के जो भी लोग जाते हैं, जो भी स्टूडेंट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब आप रशिया जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि हम लोग भी वहां जाएंगे. तो ऐसा होता है कि एक एनवायरनमेंट आपको फ्रीली मिलता है, कोई आपको देख नहीं रहा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो. तो कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई जो करने जाते हैं उससे हट के कुछ और ही करने लग जाते हैं. तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलूंगा कि भाई आप जो करना है आपको करो, मौज मस्ती करो, पार्टी करनी है करो, घूमो फिरो, बट जो करने गए हो एटलीस्ट उसको कर लो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया है, एटलीस्ट उसको ब्रेक मत करो. जी. वन सेंटेंस, चूज योर कॉन्ट्रैक्टर एंड योर लाइफ पार्टनर वाइजली. दैट्स ऑल. ये बोला. सर जैसे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हम कह रहे थे कि मिलिंद शिंदे सर वाज द आइडल फॉर Yeah. अस when we were in first year. I think in coming 6 year people will say the same thing about you, sir. I think so. And That's the thing. thank you for, yes, and thank you for having us here, sir. ये काफी डिफरेंट था, नॉट कि वही कि किसी का किसी को मार्केट करो. So it was a different thing. Thank you once again, sir. Yeah, I just wanted to say one thing, that genuinely this interview would be the one that I would want to watch when I would want to go to abroad.
because this has genuine, honest reviews, and it's not a promotional thing for anything. Because till now, whatever I have seen, it is promotional. Either some app is doing it, or some kind of promotional Sponsors, thing is going yeah. on. But in this Yeah. one, there is genuine information, which is important for an foreigner, like a beginner. So I would say, yeah, good job. Thank you so much for making me a part of it. First of all, thanks a lot for considering me enough for this podcast. और फिर बिगनर्स के लिए मैं बोलूंगा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू रीडिफाइन योरसेल्फ. सो बस अपनी कहानी जितना बेस्ट लिख सकते हो लिख लो. That's great. That's great, guys. So यहाँ पे हम खत्म करते हैं, यहाँ पे the end. और